Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Vimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a picker card tarot reading and this is going to be a very specific reading. Okay. And the topic of this reading is why you keep on attracting a partner who is not choosing you. Okay. So this is going to be very specific for all of you people. If you feel that you attract similar kind of relationship situation or attract similar kind of partners who made you feel that you are not their priority or they are choosing everybody before you, or if you have observed a pattern that you're continuously attracting a partner who are not ready to fully commit to you. They have their uh, options open, or you just sense that they are not fully committed. They are keeping their options open. That means they are not choosing you completely, right? Or you perceive that your partner is not choosing you. Okay, so it is a pattern. Okay, if it has happened uh, more than one time, two times, three times, you felt this similar way in every relationship, or at least in two, three relationship where you observe that you are the one who is giving a lot of effort in that connection. Okay, so that they choose you, but it is not happening naturally. But you also have observed that in case of your friends, they did not have that much of struggle to be chosen by their partner. So that means universe is bringing similar kind of people so that you become aware of your own subconscious pattern. What pattern is creating this similar kind of situation where every time you are struggling to be chosen by your partner. So this is going to be a detailed reading, and today I'm not going to do any pick a card reading. This is going to be a collective reading. If you are going through similar kind of situation, okay, where you always felt that it is a struggle to be chosen by your partner and you always feel the pressure, you need to perform better so that they choose you, they prioritize you, they put you before their work, they put you before their friends, they put you before their um, family maybe, or you always felt that you are the second option when your partner is done with their other options. It could be work, it could be other friends, it could be family members, it could be that you perceive that your partner has kept their option open, or you observe that they are uh, very flirty with other people. Okay, and when you actually wanted to come out of this connection but they did not let you go. Okay, if similar things has happened that you caught them uh, flirting with other people, you saw them that they have this tendency to flirt with other people, but when you confront them that, see, I am going to leave this connection, but they do not allow you to go, right? But at the same time you are feeling very much resentful that this person is not prioritizing you, this person is not giving you the kind of respect you deserve, but at the same time you feel they are not leaving you. Okay, so this could be a pattern, pile number A, if it has happened multiple times in your life, more than one time, twice, thrice, that you observe that you attract a similar kind of a partner where you feel that you are not their priority, you feel like an option. That means it is a pattern, subconscious pattern, and you need to become aware of it. What patterns is creating the situation? What pattern is attracting the same kind of partner who is giving you similar kind of experience? Okay, so stay tuned with me. This is going to be a timeless reading, and please be open because it is a collective reading, so it is not going to um, resonate with all of you. Only pick what resonates. You will understand कि हाँ यही आपका situation है, और
ये आपके साथ हो रहा है, राइट? एंड जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि हाँ इट इज नॉट मैचिंग विथ माई सिचुएशन, लेट इट गो, बिकॉज ये किसी और के लिए होगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप कोई भी इंगेजमेंट करते हो मेरे चैनल के साथ, तो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं बहुत इजीली आपका जो एनर्जी है वो पिक कर पाती हूँ मेरे रीडिंग पे. और इफ यू विश टू बुक 1-to-1 session with me so that you can break free from this pattern, unhealthy pattern, and attract better situation in your connection, enjoy fulfilling relationship, you can reach out. My WhatsApp number is given in the description. Okay. So आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं. आप सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है. ओके. वाई आपको ये लग रहा है? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से खुश नहीं हो. ओके. मेनी ऑफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन. आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन, एक वॉइड है, एक अनफुलफिलमेंट है. ओके. पर कुछ आप लोगों को रोक रही है कि आप निकल नहीं पा रहे हो. क्या रोक रही है? फाइल नंबर क्या रोक रही है? ओके. ओके. So if you are feeling stuck in this particular connection, okay, you know that deep down you feel attraction towards this person. You feel that you are very much attracted towards this person. Okay. The chemistry, you both have chemistry for each other, you both have passionate feelings for each other, but at the same time, I'm so sorry, I feel your heart is telling you that I deserve better, I deserve समथिंग मोर. एक लॉन्गिंग है आप लोगों के अंदर कि आई डू नॉट वांट टू सेटल फॉर दिस बिकॉज दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इज नॉट मीटिंग ऑल ऑफ माई नीड्स. मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों के केस में, आई एम सो सॉरी, आई एम रिपीटिंग द पाइल because every time I do pick a pile reading, but while I was shuffling, immediately I got this guidance that do not do any pick a pile reading, do it a collective reading, because the topic is so specific. People will get guidance inside what they are looking for. So the truth is, though this connection offers you passion, lot of fire between you and your person, okay, there could be amazing sexual chemistry, but I feel आप लोगों के अंदर एक ये चीज हो गई है कि something more, only sexual connection, only living together is not enough. The person has to understand me, because कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक emotional dissatisfaction है. Okay, this connection brings lot of fire in you, but the problem is fire से आप burn हो जा रहे हो, you know. पर आपके अंदर वो पीस की कमी है. That peace is missing here because this connection has lot of fire, that ignited lot of fire inside you. And what happens is, ऐसे connections में जहाँ पे आपको आपको बहुत ज्यादा passionate feel हो रहा है, बहुत ज्यादा sexual chemistry है, it ignites lot of fire element within you. उससे क्या होती है कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सप्रेस्ड एंगर है, पास्ट की रिजेंटमेंट है, पास्ट की गिल्ट है, शेम है, वो सारी चीजें, जो ये नेगेटिव इमोशन है ना, वो सारी चीजें भी बाहर आने लगती है. ओके.
आपने देखा है कभी कि पैशनेट कनेक्शंस जहाँ पे होती है वहां पे एक डुअल इमोशन कभी कभी होता है. यू फील अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट पर्सन, एट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो अनदर पार्ट विद इन यू जो एक एंगर, एक कंप्लेन भी कैरी करता है सामने वाले के लिए. तो ये कनेक्शन ऐसा है ना, इस कनेक्शन में पैशन भी बहुत है, बाय द सेम टाइम गुस्सा भी है. इट्स लाइक डुअल फीलिंग्स. आई फील यू, आप लोग साथ में भी नहीं रह सकते हो और दूर भी नहीं रह पाते हो, ऐसी सिचुएशन है. नाउ द थिंग इज व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ पार्टनर जो आपको सेम एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि दे आर नॉट कमिटिंग फुल्ली टू मी. मतलब आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट या पूरी तरीके से चूज नहीं कर रहे हैं वो लोग. व्हाई यू फील सो? ओके. ओके. ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना, वो आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हो सामने वाले को प्रूव करने के लिए कि हाउ गुड यू आर. You people are actually pushing yourself, trying too hard to make this relationship work, you know, mm, so that your person chooses you. क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? लेट मी टेल यू. जब आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट देते हो ना कोई चीज को पाने के लिए, that shows that deep down there could be an insecurity and fear कि this person might leave you. जब हम जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं तब हम एक फियर से ये चीज ऑपरेट करते हैं कि ये इंसान हमें छोड़ देगा अगर हमने ज्यादा कोशिश नहीं की. ये कनेक्शन विल नॉट वर्क इफ आई डू नॉट गिव माई 1000%. उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक कंप्लेन, एक इरिटेशन क्रिएट हो रहा है, पाइल क्रिएटेड हो रहा है. कलेक्टिव पीपल जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि डीप डाउन आपके अंदर ये फीलिंग है कि जो आप हो नेचुरली, उससे आप एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर सकते. आपको कोई और बनने की जरूरत है, कुछ और एक्स्ट्रा शो करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन सेल योर सेल्फ टू दैट पर्सन. यू कैन प्रूव दैट पर्सन दैट यू आर वर्दी of love. You can prove that person ki you know, see the I can offer this to you, to now choose me. What is stopping you from choosing me? Deep down आपके अंदर ये एक फीलिंग चल रही है. और ये क्या है मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी. ये क्या है, बार बार मैं पायल बोल रही हूँ यार, गॉड. ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ. नाइट sometimes talks about your childhood. Okay, immature energy, and it is reverse. So ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, दिस पर्सन इज वेरी immature. Why? This person thinks that उसको शो ऑफ करने की जरूरत है, वो जो एक्चुअल में है वो दिखाना नहीं चाहता. कभी कभी वो ओवरडू करता है, इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है. शायद आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो इस कनेक्शन में इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हो. ओके. या हो सकता है कि आप अननोइंगली कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है. अगर मैं आप लोगों को ये चीज बोलूं, आप लोगों को ये भी लग सकता है कि यू नो क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर एक तूफान है, एक कंप्लेन है, एक एंगर है कि मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ.
माई पार्टनर इज नॉट अप्रिशिएटिंग मी, वो मेरा वैल्यू नहीं करता. ओके, ये शायद आप लोगों को लग रहा है, पर यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि एक बार स्लो डाउन कर लो. आप एक बार स्लो डाउन कर लो, और आप अगर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हो, और यू आर ब्लेमिंग योर पार्टनर इंटायरली, और अगर आपके अंदर वो एक टेंडेंसी हो रही है ना कि आई एम गोइंग टू लीव यू, एंड देन यू विल लर्न टू वैल्यू मी, एक टेंडेंसी टू पनिश दिस पर्सन, अगर आप लोगों के अंदर ये चीज चल रही है, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, थोड़ा सा अपने आप को इस पर्सन से, इस कनेक्शन से डिटैच कीजिए. जब आप बहुत ज्यादा कमिटमेंट के पीछे भाग रहे हो या बहुत ज्यादा अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक अटैच्ड हो जाते हो उस आउटकम से. और जब भी हम बहुत ज्यादा एक आउटकम से अटैच्ड हो जाते हैं, वहां पे ही ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि जस्ट होल्ड ऑन एंड रिफ्लेक्ट इन योर कनेक्शंस, कि पास्ट रिलेशनशिप में भी आपने ऐसा ही बिहेव करा था. शायद आप अभी भी पास्ट के लोगों को ब्लेम करते हो कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उनके अंदर ये कमियां थी, पर आपने कभी ये चीज देखा क्या कि कहाँ पे उन ब्रेकअप्स में आपका भी कंट्रीब्यूशन था? हाउ यू बिहेव इन अ कनेक्शन. शायद आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते थे, या बहुत ज्यादा नीडी हो जाते थे कि यू डू दिस, यू डू दैट, और आप अननोइंगली आपके पार्टनर के लाइफ को, एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे. या उन्होंने अगर कुछ भी कर लिया, लेट्स से दे आर बिकमिंग फ्रेंडली विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है, या कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आपने उन लोगों का देख लिया, दैट कुड बी अ वेरी नॉर्मल मैसेज. वो किसी को लाइक कर रहे थे, या उन्होंने कोई चीज आपको एक्सप्रेस करा कि आई एक्चुअली लाइक दैट पर्सन, दैट कुड बी जस्ट एन एक्सप्रेशन, पर उसकी वजह से आपके अंदर एक इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलिसी क्रिएट हुई है कि आपके अंदर अननोइंगली टेंडेंसी होती है कि लेट मी पनिश देम. और आप पनिश करने के लिए एक सिचुएशन ढूंढते हो, मौका ढूंढते हो. और आप जो सबको, अगर आप अपने ही अंदर ये चीज बोल रहे हो कि दे आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, मैंने उन लोगों को देखा लोगों से बात करते हुए, उन लोगों को देखा हंसते हंसते बात करते हुए, दिस इज नॉट इनफ टू टैग अ पर्सन दैट दे आर कैरेक्टरलेस. आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप प्लीज प्लीज प्लीज, आप आपके जो भी पर्सन है उसके अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करने की वजह से आप क्या कर रहे हो, उनके हर एक बिहेवियर को एक रेड कलर कोटिंग दे दे रहे हो. आपके पास की इमोशनल पेन की वजह से जो हील्ड नहीं है, या हो सकता है पास्ट में आपको कोई पर्सन ने चीट करा है, या वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, उसके वजह से आप क्या है कि आपके जो करंट पर्सन है उसको आप पनिश करना चाहते हो. वो जो आपकी अनरिजॉल्व इमोशन है, उसके वजह से क्या हो रहा है, इवन इफ योर करंट पार्टनर इज एक्चुअली उतना बड़ा गुनहगार नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट दैट मच ऑफ विलन. This person could have a very charming personality. They could be a people person. Okay, हो सकता है वो सोशलाइज करना पसंद करते हैं, या उनके दोस्त हो सकते हैं. दिस पर्सन कुड बी वेरी फ्रेंडली, एंड देयर फ्रेंडली एटीट्यूड इज ट्रिगरिंग योर इनसिक्योरिटी. They should prioritize me, they should give me all the attention. Why they are um, behaving so friendly with other people? That means they could have a tendency to cheat me. आप अपने आप को ये एक स्टोरी फीड कर रहे हो, और आप अपने ही अंदर एक नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर रहे हो. So universe is telling you, take a pause, detach yourself from entire situation. अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रख के इस पूरे कनेक्शन को ऑब्जर्व करो.
आप अपने आप को सेपरेट करो इस सिचुएशन से, एंड एज एन ऑब्जर्वर, हैंगमैन टेल टॉक्स अबाउट बी अ ऑब्जर्वर, विटनेस एवरीथिंग। आप कैसे बिहेव करते हो जब आपके पार्टनर दोस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? इफ दे टॉक टू अपोजिट जेंडर, हाउ डू यू बिहेव? डज इट मेक यू इनसिक्योर एंड जेलस? दैट मीन जो भी आप लोग देख रहे हो इस रीडिंग को, आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व इमोशनल वुंडिंग है, पास्ट से आ रही है, जिसको आपको हील करने की जरूरत है। ये जो नेगेटिव इमोशन के लिए आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि आई एम फीलिंग जेलस और आई एम फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ देयर बिहेव इन अ सर्टेन वे, दिस इज योर प्रोजेक्शन। साइकोलॉजी में इसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। जब हमारे अंदर की एक अनरिजॉल्व पेन है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हम नहीं लेना चाहते, पर हम सामने वाले को ब्लेम करना चाहते, यू नो, बिकॉज ऑफ यू आई एम फीलिंग दिस वे। द ट्रूथ इज you are feeling this way because you already have this emotion inside you. कोई इंसान आपके अंदर से कोई भी चीज को निकाल नहीं सकता बाहर अगर वो चीज आपके अंदर है नहीं। अगर आप किसी को बोलते हो कि इस इंसान मुझे पोक करता है कि मैं अब्यूजिव हो जाती हूँ, या मैं गाली गलौज करने लगती हूँ, या मैं झमेला करने लगती हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, इफ यू आर रियली वरीड अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सामने वाले को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस कनेक्शन में विक्टिम प्ले कर रहे हो तो आप इस चीज को समझ लो, यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता जहां पे आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपने एक ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। अगर आप अब्यूजिव हो जाते हो इस कनेक्शन में, या आपके अंदर जेलिसी, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, या आप एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये अनरिजॉल्व इमोशनल वुंडिंग है। वो घाव कभी सूखा ही नहीं था। वो पास्ट कनेक्शंस में आया हो, या आपको लग रहा है कि नहीं पास्ट कनेक्शन में तो इतना नहीं हुआ था मुझे, तो आपकी चाइल्डहुड से है। ये चाइल्डहुड की वुंडिंग होती है, साइकोलॉजिकल वुंडिंग होती है। ठीक है, अगर उसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो, आप बोल सकते हो कि नहीं मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम। आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो, क्यों? ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हमारी स्टोर रहती है वो हमसे हिडन होती है। आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होगा, पर जब भी ये डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है, आपके ऊपर दबाव क्रिएट होता है, तब वो चीज सरफेस लेवल पे आती है। तो आप अगर इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो कि ये इंसान मुझे पोक करता है, इसके एक्शन की वजह से मुझे गुस्सा आता है, या मुझे गाली गलौज करने का मन करता है, या मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इनसिक्योर आ रहा है, एंड अगर आपने 2 10 15 रील देख लिया है इंस्टाग्राम पे, या कोटेशन देख लिया है कि इट इज योर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू फील सिक्योर, आई एम टेलिंग यू डियर, ऐसे रील्स, ऐसे कोट्स लिखा जाता है ताकि वायरलिटी बने और उस पेज को व्यूअर्स मिले, फॉलोअर्स मिले। बट सच तो ये है, अगर आप अपने ही एक्शन को जस्टिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप अपने एक्शन को जस्टिफाई करोगे, आपके इमोशन को जस्टिफाई कर रहे हो, अननोइंगली आप ये रिलेशनशिप को सैबोटेज तो कर रहे हो। और ये लेसन अगर आपने नहीं सीखा, ठीक है, तो आप ऐसे सिचुएशन को नेक्स्ट पार्टनर में भी अट्रैक्ट करोगे जहां पे आपको सेम फील होगा कि मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या मैं लोगों के लिए बहुत करती हूँ, मुझे प्रायोरिटाइज नहीं करा जा रहा है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपकी बचपन का कोई पैटर्न है, अनरिजॉल्व पेन है, अनरिजॉल्व इमोशनल वुंडिंग है, और उसको हील करने की जरूरत है। ये इंसान का जो भी बिहेवियर है ये आपको ट्रिगर करता है। ट्रिगर मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब सामने वाले का कोई बिहेवियर या कोई बात, कोई एक्शन से हमारे अंदर एक इंटेंस नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में हमें लगता है कंट्रोल ही नहीं है, हमें ऐसा बिहेव करना ही होगा, दैट मीन ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, आपका अनहील्ड पॉइंट है। स्पेशली अगर आप देखते हो कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ उसकी दोस्ती चल रही है,
या किसी और के साथ वो आउटिंग पे जा रहा है या एक्चुअली कैजुअली मीटअप कर रहा है, दैट ट्रिगर्स एन इनसिक्योरिटी विद इन यू कि यू नो other person will become priority for them and this person might forget me. और आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लगता है, अगर आपको ये लगता है कि आई वॉन्ट अ मैरिज, आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके अंदर कमिटमेंट से रिलेटेड फियर है। क्या फियर है? क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैं ऐसे कनेक्शन में चली जाऊं और फिर से मेरे साथ सेम चीज रिपीट हो कि पार्टनर इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जहां पे मुझे लग रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं सेकेंडरी हूं और मुझे एज अ ऑप्शन ही या सेकेंडरी होके ही लाइफ को जीना पड़े, तो मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके जी नहीं सकती। ये कहां से आ रहा है? लो सेल्फ वर्थ, अनवर्दीनेस। आप लोगों के अंदर एक डीप डाउन आप लोगों को फील होता है यू आर नॉट गुड इनफ। आप अच्छा रिलेशन, अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता, इसलिए आप शायद कनेक्शन में बहुत ज्यादा ट्राई करते हो ताकि आपके पार्टनर आपको समझे, आपको वैल्यू करे। यू ओवर गिव इन अ कनेक्शन जस्ट टू प्रूव योर वर्थ। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आज एक पेन पेपर लेके इस क्वेश्चन में जरूर रिफ्लेक्ट करना कि क्यों मैं ओवर गिव करती हूँ। वाई डू आई फील दैट आई नीड टू ओवर गिव? वाई डू आई फील दैट आई नीड टू ओवर परफॉर्म? मुझे क्यों लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत है? मुझे क्यों लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ओवर गिव करने की जरूरत है कनेक्शन में, सो दैट अदर पर्सन चूजेस मी? दैट मीन आपका कहीं ना कहीं ये एक बिलीफ सिस्टम है कि आप जो हो वो इनफ नहीं है। दैट मीन आप जो हो वो बन के आप प्यार या जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो या कमिटमेंट आप चाहते हो या हेल्दी पार्टनर आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ये आपका पैटर्न है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। और क्या होता है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना उसके बेसिस पे ही आप सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो। ये कि बिलीव्स आर योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, उसके बेसिस पे ही आप सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो। दैट मीन आपको इस पर्सन को ब्लेम करके फायदा नहीं है, आपको अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपको करियर में भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे और ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट आई गेट अप्रिसिएशन। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि घर में भी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको बहुत आसानी से अप्रिसिएशन नहीं मिला कभी भी। आपने बहुत ज्यादा अपने घर वालों को भी खुश करने की कोशिश की, आपके पेरेंट्स को भी खुश करने की कोशिश की, आपके वर्क प्लेस में भी आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अप्रिसिएशन नहीं मिलने का रीजन रीजन ये है कि आप डीप डाउन खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। आपको लगता है कि सामने वाला अप्रिशिएट कर दे, सामने वाला वैल्यू कर दे, बट सामने वाला आपको अप्रिशिएट वैल्यू तब तक नहीं करेगा जब आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग ये नहीं चेंज होगी। जब आप अपने आप को फर्स्ट नहीं चूज करोगे, जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, यू विल स्ट्रगल टू अट्रैक्ट पीपल, सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पे आपको अप्रिशिएटेड या वैल्यूड फील हो। बिकॉज योर आउटर रियलिटी रिफ्लेक्ट्स योर इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में चीजें चेंज होगी तो बाहर दिखेगी। आप लोग ये बोल सकते हो कि मैं क्यों इस तरीके से बिहेव करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। ऑफ कोर्स आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इसलिए रह चुके हैं क्योंकि आपका बिलीफ था, आपका ये बिलीफ सिस्टम ही आपके इस एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर रहे हैं कि आप ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जहाँ पे पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहा पूरी तरीके से, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप
प्रायोरिटी नहीं हो, आपको अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा, आपको वैल्यू नहीं करा जा रहा है, बिकॉज डीप डाउन यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ। और द रीजन इज आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, इसीलिए आप प्रूफ करने की कोशिश करते हो। सी आई डो नॉट नो आप फीमेल हो कि आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो और आप वॉच देख रहे हो इस वीडियो को, आई आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या आप लाइफ में लोगों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि यू आर अ गर्ल? Have you ever wanted to prove people that you are a girl? You know it, you are a girl. You do not need to prove anybody. Because आपको ये पता है, ये आपका सच है. If you are a boy watching this video, have you ever felt that need to prove you are a man? हम वही चीज को सामने वाले के सामने प्रूव करना चाहते हैं डीप डाउन, जब हमें लगता है कि हम वो नहीं है। अगर डीप डाउन आपको फील है, होता है, या आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि आप प्यार के लायक नहीं, इफ यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, इफ यू आर नॉट अ गुड पार्टनर, मे बी आपके पास्ट रिलेशनशिप में किसी ने आपको रिजेक्ट करा या बिट्रे करा, वहां से आपने ये मैसेज पिक करा है, मे बी मैं चुनने के लायक नहीं। या हो सकता है कि आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, सबका सिचुएशन अलग होगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे बचपन से आता है। अगर आपके पेरेंट ने बहुत ज्यादा आपको लोगों के साथ क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, कि आप पढ़ाई में आगे क्यों नहीं हो, सब आगे जा रहे हैं, तुम में कुछ प्रॉब्लम है, या उसकी तो शादी हो गई है, या उसके पास ये है, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है, तुम इतना नहीं कमा रहे हो, ऑल दिस शेम, ये जो घर वाले कभी कभी शेम कर देते हैं अननोइंगली, क्योंकि यू नो वो उनका भी पेरेंटिंग ऐसे ही हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके लो सेल्फ एस्टीम को क्रिएट करता है। ये आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उसको गिरा देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद से क्या होता है कि यू कीप ऑन प्रूविंग एवरीबडी दैट यू आर गुड इनफ। आप प्रूव करना चाहते हो लोगों को बार 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 बार, बाय ओवर गिविंग इन टू अ कनेक्शन, ठीक है, बाय एंटरटेनिंग एंड अनहेल्दी बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। आप लोगों को बोलोगे कि मैं निकलना चाहती हूँ जो ऐसे कनेक्शन में जहां पे मुझे लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है, मेरी अप्रिसिएशन नहीं हो रही है, या मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है। आप तब भी उस कनेक्शन में निकलने का शक्ति नहीं रखते, क्योंकि आप बार बार बोलोगे कि वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। नो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर डीप डाउन आपको अनवर्दी फील होता है कि शायद मैं इससे बेटर डिजर्व नहीं करती, इसीलिए आप जो है ना, आपका जो लक्ष्मण रेखा है, जो बाउंड्री है, उसको आप असर्ट भी नहीं करते कि यू नो व्हाट, इवन इफ यू लव मी, यू फील अट्रैक्टेड टू मी, इट्स ऑल फाइन, बट आई फील दिस वे एंड आई वांट अ कमिटमेंट और दिस एंड दैट। आप क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं क्लियर कम्युनिकेट करते आप? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मिलेगा मुझे, आई डू नॉट डिजर्व इट, even if it is bare minimum, you feel like you do not deserve it. बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि you want to have a quality time with your partner, but you do not ask for it. आपको लगता है कि oh, the person could be very preoccupied, उसके पास टाइम नहीं होगा, or even if I ask for their time, it could be too much. और ये बिलीफ सिस्टम के वजह से बहुत लोग ऐसे पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में जो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, जिसके लाइफ में ऐसे 75 झमेले हैं, या तो वो अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या उसके घर वालों को टेंशन को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं शायद आपको ऐसा मैसेज देता है कि यू नो व्हाट, यू आर आस्किंग टू मच फ्रॉम मी। अंडरस्टैंड व्हाट बिलीफ सिस्टम ऑफ योर्स, व्हाट पैटर्न ऑफ योर्स हैज क्रिएटेड, मैनिफेस्टेड दिस सिचुएशन, कि बार बार आपको लग रहा है कि क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, और आप कंप्रोमाइज करते करते ऐसे कगार पे खड़े हो कि आपको अभी और अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिकॉज डीप डाउन यू आर फीलिंग हॉलो, एम्प्टी। कहीं ना कहीं
आप लोगों को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है योर चॉइसेस पे। आप कैसे अपने आप के साथ ट्रीट कर रहे हो, आपका इनर डायलॉग क्या है, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं बचपन से ही ऐसे कोई पेरेंट्स या ऐसा कोई माहौल था जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है कि आप प्रायोरिटी नहीं हो, और आप जैसा हो उस तरीके से आप एक्सेप्टेबल नहीं हो। आपको अपने फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ेगा, भले ही आप खुश ना हो उससे, पर यू ऑलवेज फेल्ट अ प्रेशर टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। अदरवाइज मे बी आपके पेरेंट्स या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स थे वो कुछ ना कुछ जजमेंट पास करते थे या शेम करते थे आपको कि हाँ हमें पता है कि तुम तो ये नहीं करोगी, तुम तो वो नहीं करोगी, एंड मे बी दे कंप्लेन, they blame you for not meeting their expectation। ये ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के केस में कि बस शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के केस में कि कोई एक एग्जाम था जहां पे आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आया, ठीक है, थोड़ा सा कम मतलब आपके पेरेंट्स ने जो एक्सपेक्ट करा था उससे कम, तो शायद उस एक मिनिमम चीज के लिए भी आपको बहुत सुनाया गया, क्रिटिसाइज करा गया, किसी ने आपके साथ सिंपथाइज नहीं करा। इट्स ओके, दिस चाइल्ड हैज put their best, but okay, this child also has the potential to grow, perform better। पर कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ कंपेयर करा गया है या आपको बोला गया कि ये इसमें इतना टैलेंट नहीं है या ये नहीं कर पाएगा, और ये सारी चीजों से, ये सारी बातों से आपने ये प्रोग्रामिंग बना लिया कि यू आर अनवर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, या आप कम हो लोगों से। और इसी प्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर एक टेंडेंसी हो गया है कि इवन इफ आप कोई ऐसे वर्क प्लेस पे हो या ऐसे कोई कनेक्शन में हो जहां पे आपको बेयर मिनिमम मिल रहा है, पर यू डीप डाउन यू फील यू डिजर्व दिस, यू शुड नॉट आस्क मोर देन दैट। आप अपने पार्टनर को चैलेंज करने से भी डरते हो कि इफ आई चैलेंज देम दे माइट लीव मी एंड आई माइट नॉट गेट बेटर पार्टनर। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि यू नो व्हाट, नो आई वाज प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू लीव दिस कनेक्शन। यू नो ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ, पर आई कैन बेट यू, अगर आप अकेले में रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, आप देखोगे कि आप इसीलिए नहीं छोड़ रहे हो इस पर्सन को। आपके अंदर जब भी इस कनेक्शन से निकलने का डिजायर होता है वो इसलिए होता है बिकॉज यू वांट टू पनिश दैट पर्सन, you want to test that person the medicine ki, see, when I was with you you did not prioritize me। Sorry, there was problem with the audio, so let me repeat it। तो आप लोगों के अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि लेट मी टीच दैट पर्सन अ लेसन बाय चूजिंग समवन एल्स, बाय लीविंग देम, ताकि उनको मेरी वैल्यू समझ में आए कि मैं क्या थी या क्या हूँ। ओके, तो आप इसीलिए बेटर ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचते कि आप सोचते हो कि यू डिज़र्व बेटर। आपके अंदर ये आ रहा है कि लेट मी टीच दैट पर्सन अ लेसन, कि अगर उनको लगता है कि उनके बिना मेरी लाइफ में कोई और नहीं है या उनके बिना मैं किसी और के लिए फील नहीं कर सकती या कर पाऊंगी या मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, लेट मी टीच दैट पर्सन अ लेसन। तो आपका डीप डाउन एनर्जी क्या है, इज टू punish that other person। But ask yourself, if you still feel a strong connection towards this particular person, okay, आप उनको पनिश कर रहे हो कि खुद को पनिश कर रहे हो? If you decide to move on with someone else when you still have a feelings for this person, do you think you're only punishing that person or you're also punishing yourself? बाद में you're really going to regret it। रिग्रेट योर चॉइस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को छोड़ के आप रिग्रेट करोगे, नो। इफ यू कम आउट ऑफ दिस कनेक्शन जस्ट टू टीच दैट पर्सन अ लेसन, जस्ट टू टेस्ट दैट पर्सन द मेडिसिन, रिवेंज लेने के लिए अगर आप ये कर रहे हो, तो आई एम गारंटिंग यू, मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ डील किया है, मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि पीपल रिग्रेट इट।
उनको पता चला कि वो उन्होंने सिमिलर कनेक्शन को अट्रैक्ट कर लिया है, सिमिलर सिचुएशन उनके साथ में फिर से रिपीट हो रहा है, एंड एक्चुअली उन्होंने अपने लिए पनिशमेंट ले लिया है. क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द कार्मिक पैटर्न. सो यूनिवर्स इज एक्चुअली गाइडिंग यू. विथड्रॉ करो सिचुएशन से एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर पैटर्न. आप अपने पैटर्न को रिफ्लेक्ट कीजिए. हाउ डू यू बिहेव विथ यू? द ट्रूथ इज, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो भी आप लोगों के साथ चाइल्डहुड में हुआ है, राइट, नोबडी कैन चेंज इट. ओके, सो जब हम हमारे घर वालों से अच्छी चीज़ें लेते हैं तो कोई बुरी चीज़ भी लेते हैं. यू नो, when we inherit some good things we also inherit some bad things from them. ओके, क्योंकि डीएनए में ये ट्रांसफ़र होती ही है, राइट. सो वॉट एवर हैपन्ड इन द पास्ट इज हैपन्ड, बट इफ़ यू हैव डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर रीडिंग, राइट, यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें. यू स्टार्ट विथ अ रिफ्लेक्शन. How you are contributing to this situation. Take accountability of your own insecurity, your own jealousy. You know, nobody can behave the way you want them to behave because every individual is different. वो आपका गुलाम नहीं है. हर एक इंसान का अलग पर्सनालिटी है. एंड आप खुद के अंदर भी ये देखिए कि अगर आपको पता ही था कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, पर आपने क्यों अपनी जो अनमेट नीड्स है, जो आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट है, क्या आप फुलफिल कर रहे हो या आप उनको ओवरबर्डन कर रहे हो कि यू मेक मी फील हैप्पी? नोबडी कैन मेक यू फील हैप्पी. इट इज़ टू मच टू आस्क फॉर. हमेशा हमारे पार्टनर के पास उतना बैंडविड्थ नहीं रहता है कि वो आपको एज अ केयर टेकर हेल्प कर पाए. आपको अपने घर वालों से जो प्यार नहीं मिला, अगर वो प्यार अपने पेरेंट्स, आपकी अपने पार्टनर से कंटिन्यूसली क्रेव करोगे कि यू वैलिडेट मी, यू अंडरस्टैंड मी. डू यू वैलिडेट योर सेल्फ? आप खुद को वैलिडेट करते हो? क्या आप खुद को समझने की कोशिश करते हो? क्योंकि आप लोग अपने आप को रिजेक्ट करके अपने पूरा बर्डन जो है अपने पार्टनर को दे दिया है, एक्सपेक्टिंग देम टू मीट योर नीड्स. बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट योर ओन नीड्स. अगर आप कहीं पे ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपकी नीड्स मीट नहीं हो पा रही है, देन डू यू हैव द करेज टू से नो? और आर यू बेगिंग टू अ बेगर who has hardly to give you? आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसे जगह से मांग रहे हो कि यू मेक मी हैप्पी, यू फुलफिल माई नीड्स, यू काम मी डाउन, जिस इंसान के पास खुद का इमोशनल बैंडविड्थ नहीं है. एंड देन यू माइट बी रिजेंटिंग दैट पर्सन फॉर नॉट गिविंग यू वॉट यू वॉन्ट. क्या उसके अंदर कैपेसिटी है? आप क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? रिलेशनशिप में दो तरीका होता है. अगर आपको एक्चुअल में अपने आप से प्यार करना आता है या अपने आप को समझना आता है, तब आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो. पर अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, आप सेल्फ अश्योर्ड नहीं हो, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तब आप ऐसे रिलेशनशिप में जाते हो जहाँ पे आप एक दूसरे को शोषण करते हो इन द नेम ऑफ लव. जिसको आप प्यार के नाम दे रहे हो वो आपका अटैचमेंट है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल नहीं है कि वो कुछ बेहतर बन पाए, पर इट इज़ अप टू यू. आप एक दूसरे का शोषण करते रहोगे कि यू वैलिडेट मी, यू मेक मी फील वर्दी, योर पर्सन विल ऑल्सो डू द सेम. बट आप लोगों में से कोई भी किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे आप. The truth is, you need to learn to value yourself. You need to learn to love yourself. And you need to also have courage to say no to situation
which is not serving you. अपने पार्टनर को चैलेंज करने से मत डरिए कि चैलेंज देम टू बिकम अ बेटर, एंड ऑल्सो आप भी खुद के ऊपर काम करें. बहुत लोग क्या करते हैं कि दे ओनली चैलेंज देयर पार्टनर टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ देम सेल्फ, बट बिफोर यू नीड टू टेक दैट चैलेंज टू मेक योर सेल्फ बेटर वर्जन. बाय लविंग योर सेल्फ, बाय लुकिंग इन टू यू, रिफ्लेक्ट करो कि कैसे आपने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करा है, आपके अंदर क्या खामी है जो शायद आपको फीडबैक में मिलता होगा आपके पार्टनर से. डू यू रियली वर्क ऑन दिस फीडबैक और यू आर वेरी मच बिजी टू प्रूव देम रॉन्ग? और ये सारी चीज़ें, ये जो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये जो वूंडिंग है, आपकी इमोशनल वूंडिंग है, जो बार बार आप एक मौका ढूंढते हो कि आप एक केओस कर पाओ या एक अट्रैक्ट कर रहे हो अननोइंगली एक आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन. मैं आपको पूरा दोष नहीं दे रही हूँ, ओके. चांसेस आर हाई आपके पार्टनर के अंदर भी सेम ही इमोशनल वूंडिंग होगी, बिकॉज वी जनरली अट्रैक्ट मिरर्स इन आवर रिलेशनशिप, ओके. पर मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि इवन इफ आई ब्लेम योर पार्टनर इट वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, पर इफ आई मेक यू अवेयर ऑफ योर रिलेशनशिप पैटर्न, योर वूंडिंग, इट हैज़ अ चांस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप खुद के ऊपर काम करो. और वो कैसे आएगा? व्हेन यू स्टॉप फोकसिंग ऑन देम एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. So this was your reading. If you found it helpful, like, share and subscribe to my channel. रिफ्लेक्ट ज़रूर करना जो भी रीडिंग को आप समझ रहे हो या देख रहे हो. और देखो क्या है कि इवन इफ़ यू वांट टू एक्नॉलेज योर फ्लॉज, आपका जो फ्लॉज है या आपकी जो भी, मैं अगर बोलूँगी कि फ्लॉज भी नहीं कहा जा सकता, कि ये आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, बोल सकते हैं कि अगर इवन इफ यू वांट टू एक्नॉलेज योर शॉर्ट कमिंग्स, यू विल सी अनदर पार्ट ऑफ यू, राइट? योर ईगो सेल्फ विल ट्राई टू डिसमिस दैट. आपका ईगो सेल्फ कुछ ना कुछ उनके बारे में लेके आ जाएगा जस्ट टू वैलिडेट योर एंगर एंड रिजेंटमेंट कि दे शुड बी ब्लेम्ड, दे शुड गेट पनिश्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल. वाई? बिकॉज ये ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म है. But I would like to tell you, do you want to win and stay alone or attract similar kind of situation? Or do you really want to be honest with yourself? झगड़े में जीतने में फोकस करेंगे अगर आप वही सिचुएशन में रह जाएंगे, आपकी सिचुएशन ही सॉल्व नहीं होगी. पर अगर आप हीलिंग पे फोकस करेंगे, एक्नॉलेजमेंट पे फोकस करेंगे और जीतने का ये जो डिज़ायर है इसको लेट गो करेंगे कि लेट आई रिलीज द नीड टू विन, आई रिलीज द नीड टू बी राइट. यूनिवर्स, लेट मी लुक विद इन what I can heal within myself so that I can attract a healthy relationship. It could be with this person, or if ये इंसान आपके लिए better नहीं है तो somebody else. But take accountability of your triggers. Take accountability of your insecurity. Right? एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती. अब आप ऐसे सिचुएशन में कभी भी नहीं हो सकते अगर आपको कोई लेसन नहीं है. ओके, यू हैव सर्टन कर्मा, यू हैव सर्टन कार्मिक लेसन टू लर्न. दैट इज़ वाई यू हैव attracted the similar kind of partners and relationship. So this was your reading. Like, share and subscribe to my channel if you wish to book one-to-one session to understand your relationship pattern better, so that you can identify what are your emotional wounding and what you need to really heal, so that you can enjoy freedom in your relationship and attract a fulfilling relationship. Okay, you can reach out. My WhatsApp number is given in the description. I will see you next. Bye.